Okay, Jay, let's start today's session. Today we Yes, are going to discuss about developing theoretical and conceptual framework. Right now, from the day one till now, we have already covered how to write introduction and literature review. So the third important component of your research writing or the scientific report writing is the conceptual and theoretical framework. So let's discuss what is conceptual and what is theoretical framework. Theoretical framework is just like a theory which you already are very much familiar about sociological theories. Perspective भी हमारे पास हैं, theories भी हैं. So theories are constructed in order to explain, predict, and master phenomena. In many instances, we are constructing models of reality. Theory makes generalization about observations and consists of interrelated, coherent set of ideas and models. So now all those theoretical perspectives जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं सोशलॉजिकल theories के हवाले से, उन theoretical perspective को हम आपकी research के साथ relate करने जा रहे हैं अभी. ठीक है. I'm sure आपने theories का course लिया होगा, yes, sociological ma'am. theories का Yeah, course. yes, 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 ma'am. So you are very much aware about कि हमारे पास कौन कौन सी theories हैं sociology में और Yes, ma'am. किसने क्या बात की है. That's good. So जी. theoretical framework is something different from the pure theory. कैपिटलिज्म की दी है, एक्सप्लॉयटेशन की दी है, क्लास कॉन्शियसनेस की बात की है. These are these are his perspective or their perspectives. Now we want to relate their perspectives, their theoretical perspectives, with our own research, which is known as theoretical framework. It is logically developed, described, and elaborated network of association among the variables, as well as it is a link or association between the variables, hypothesis, and literature survey. Now, what is your variables and what is your hypothesis? Right now, you are not very much clear, but after doing literature review, जहाँ पे आप gap निकाल लेंगे कि अब ये आपकी research है और आपके ये objectives हैं, आपने इसको इस तरह से लेके चलना है, तो वहाँ पे आपकी variables construction भी हो जाएगी. I'm not going to teach you what is variable and how to construct because आप research में वो पढ़ चुके होंगे. पढ़ा है ना variables, Yes, ma'am. independent, dependent variables and hypothesis construction. So I'm not going to repeat that topic. Here we just wanted to relate that how those variables can be interlinked with each other and how you will relate with the any particular theories. Like as far I remember, अनका आपका जो टॉपिक था that was like आप क्या कर रही Industry, थी industry import. से. हाँ जी, इंडस्ट्री जी, से जी, जी. रिलेवेंट Yes, yes, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ बात हो रही थी. yes, yes, yes. तो अब आपने वहां पे देखना है कि आप वेरिएबल्स कौन से हैं. इफ यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वेरिएबल्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. The interlinked of variables, the relationship between variable is very important. If you remember in last class we have discussed there are some moderating variables which play an important role. So after building up that variables relationship, now you have to relate that कि इस सारे relationships को कौन सी theory support करती है. निम्रा आप कह रही थी orphanage children की जब बात कर रही थी. So when you talked about the orphan children's their well-being or their socialization or their problems, while linking your conceptual framework, while developing your conceptual frameworks and linking your variables, now you can relate कि आपके मिलते जुलते variables पे कौन सी theory apply हो सकती है. ठीक है. अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स क्या थे और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. वेरिएबल्स इन द अदर इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो इंटेंशन, आपके जो एम्स थे, वो आपके बेसिकली वेरिएबल्स कहलाते हैं.
सो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने पहले अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रॉ करना होता है कि मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एंड हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर्स। अब उस कॉन्सेप्चुअल एक फ्रेमवर्क के ऊपर कौन सी थ्योरी अप्लाई हो सकती है, देन यू हैव टू गो बैक टू योर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कोर्सेज और आपके जितना भी नॉलेज है, और फिर आपको देखना है कि इसमें विच पर्टिकुलर theory or the perspective can be applied. So under this theoretical framework, which I'm sorry कि MPhil तक के students को नहीं पता होता theoretical framework क्या होता है, उन्होंने कभी apply भी नहीं किया होता। Even MPhil की बहुत सारी researches मैंने देखी हैं जिसमें apply नहीं हुआ था। Now onwards it is important and compulsory, आपको जितने भी आपकी research writing आप करेंगे, synopsis develop करेंगे, even या अपनी MPhil की research करेंगे, you have to include this theoretical framework. So how to formulate theoretical framework? It is a structure that can hold or support a theory of a research work. It presents the theory which explains why the problem under study exists. हम जिस तरह से कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि सोशल प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब मैं ये बात करती हूँ कि मेरी रिसर्च ये है जिसमें मैं देख रही हूँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है कि अपर एंड मिडिल क्लास एक्सप्लॉइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के उसमें कंट्रोल कौन करता है, हु हैज अ पावर, हु हैज मोर वेल्थ, who have prestige in the society, all those people hold the economy, all those people hold the decisions. तो अब मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मैं लिंक कर रही हूँ कि मेरी रिसर्च इस तरह से अनका आपकी रिसर्च में ये बात आएगी कि ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज एक्चुअली डीलिंग विद द सेट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस जो बिजनेसमैन होते हैं सिर्फ वही चीज़ों को ओन कर सकते हैं। The people Yes. who have a knowledge, the people who have a conscious knowledge, they can work only. The people who do not have knowledge, who do not have economic resources, they are excluded from the economy game. So now I'm relating with that कि same concept, like मैं अपनी research की जब findings लेके आऊंगी तो हमें relate करूंगी कि same जैसे कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी कि society में capitalism is the strongest body or the force which exploits human being or which creates differences in the classes. Same findings my research is going to or intended to figure out, or my अभी जो कि आप synopsis दे रहे हो ना, तो आपने उसको intention में mention करना है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन बयान करता है इस तरह आपकी रिसर्च भी अपने वेरिएबल्स को इस तरह से देखेगी। ठीक है, सो Yes, ma'am. क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए you are very much clear about which kind of theoretical framework you have to apply. Being a sociologist, obviously, we have to adopt any sociological perspective or theory. At MPhil level, try to apply contemporary sociological theorist. Have you any idea about classical and contemporary theorist? मैम क्लासिकल तो सिर्फ 8 है और उसके बाद के जो है सारे कंटेम्प्रेरी में आते हैं। Like name functionism में contemporary कौन कौन है? Any other student? Atka, Nafisa, Salim, मुझे बताइए, being a sociologist, where you stands with respect to knowledge of theoretical framework or sociological theories? जी, Atka and Nafisa. आप एमफिल के स्टूडेंट हो, कमान बीएस वाली हरकतें तो ना करें ना, माइक बंद करके बैठ जाना और सिर्फ क्लास में। टारगेट पर्सन डॉक्टर पर्सन ठीक है, और मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपका नॉलेज कितना है सोशलॉजिकल थ्योरीज के हवाले से। ठीक है, डॉक्टर पर्सन तो है। मैम रॉबर्ट के कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी में आते हैं। जी रॉबर्ट के मार्टिन कंटेम्प्रेरी में आते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी कौन सा पर्सपेक्टिव में आते हैं?
सोशियोलॉजी के 3 पर्सपेक्टिव में से रॉबर्ट के मार्टिन किस पर्सपेक्टिव में आता है? फंक्शनलिस्ट जी में। जी फंक्शनिस्ट में है। सो जब आप अब अपने माइंड में ये रखना है कि आपकी जो रिसर्च है, आपका जो रिसर्च टॉपिक है, क्या वो स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस कर रहा है सोसाइटी के, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहा है, या वो क्या सिंबॉलिकल इंटरेक्शंस उनकी डिबेट पे जा रहा है। 3 पर्सपेक्टिव के अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म में हमारे पास लिबर्टी ज्यादा है। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप ग्लोबलाइजेशन को लिंक कर सकते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को लिंक कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगर आपका इशू जेंडर बेस्ड है, सलीम आपका शायद था जिसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पे फेमिनिज्म भी लिंक होगा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी लिंक करेगा, अदर देन दीज 3 पर्सपेक्टिव। लेकिन फेमिनिज्म इज आल्सो अ डिबेट ऑफ यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट और symbolic interactionism. So each and every topic can cover under these 3 perspectives. Now this is your understanding and this is your expertise and skills कि आप अपने research को कहाँ पे fit in करते हो. Keep this thing in mind कि आपका जो topic है वो किसी भी perspective के अंदर आ सकता है. बट नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किसके अंदर लेके आ रहे हो, और लॉजिकली इसको डिफाइन करना है और डिफेंड करना है कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, व्हाई नॉट अदर्स, व्हाई दिस पर्टिकुलर थेरिस्ट एंड व्हाई नॉट अदर्स। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। Nothing is wrong, just you have to justify that why you have relating this particular theorist or perspective in your topic. So this is the how you formulate your framework. You just have to support a theory of your research work. Focus करें, it's not an easy task actually. आपको बार बार रीड आउट करना पड़ता है, and whenever you look at your research work, your findings, और फिर वापस theory को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं कार्ल मार्क्स को अप्लाई होना चाहिए था, रॉबर्ट मार्टिन को नहीं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को अप्लाई होना चाहिए था, पीर बोर्डियो को अप्लाई होना चाहिए था। सो थ्योरी में स्टॉप कहीं पे नहीं होता, वेर एवर यू पुट स्टॉप वहां से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, बट हमें वो स्टॉप लगाना होता है, अदरवाइज हम कोई एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी अप्लाई नहीं कर सकते। So this is the researchers understanding that how they hold or support a theory of related to their own research work. Yes, किसी ने हाथ खड़ा किया? जी मैम, अगर हम कश्मीर डिस्प्यूट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आता है, तो हम फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट की पर्सपेक्टिव देखेंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली कश्मीर का जितना भी है वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसमें एक पावर गेम भी आ जाती है। अगर आप उसको मजीद ऊपर पोस्ट मॉडर्न में जाओगे तो फिर उसमें सी राइट मिल जो पॉलिटिकल एलीट की बात करता है और फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करता है, वहां पे आप सी राइट मिल को भी जाके लिंक कर सकती हैं, ठीक है। सी राइट मिल का पता है ना कौन है? यस मैम। ठीक है, तो आप सो यू हैव टू लिंक नाउ विद दैट पर्सपेक्टिव। जरूरी नहीं है कि एक ही थेरिस्ट, एक ही पर्सपेक्टिव हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप ये जो कि कश्मीर का इशू बेसिकली तो पॉलिटिकल नेचर है ना, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो पॉलिटिकल एलिट्स में आ रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, या सिंबॉलिक इंटरेक्शन की डिबेट भी लिंक की जा सकती है, रिलेशनशिप हमारे कश्मीर के साथ कैसे हैं और हम कैसा रखते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल नेचर में जाएगा, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर जाएगा, या ये एक पॉलिटिकल या पोस्ट मॉडर्निज्म की डिबेट है, जिसमें फूको भी आपको कहता है कि हेजिमनी, जिसके पास पावर है वही सारी गेम करता है, और पावर गेम के अंदर आपके पास सी राइट मिल भी पॉलिटिकल पावर की बात करता है। सो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क is a theory that serves as a basis for conducting your research. अच्छा, अब जब क्वांटिटेटिव में हम पहले थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी अपने माइंड में रख लेते हैं तो ये हमारी आगे वाली रिसर्च के लिए भी इजी हो जाता है कि लाइक मैंने अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी अप्लाई करनी है तो मैंने अपनी रिसर्च में एक्सप्लॉयटेशन देखनी है, क्लास डिफरेंसेस देखने हैं,
क्लास कॉन्शियसनेस देखनी है, फाल्स कॉन्शियसनेस देखनी है। जो जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज कार्ल मार्क्स ने दिए हैं उन्हीं को मैंने अपनी रिसर्च के अंदर भी फिगर आउट करना है। क्वांटिटेटिव के लिए हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं एंड फॉर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हम आगे की अपनी रिसर्च डिज़ाइन, अपना क्वेश्चनर, अपने इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। बट फॉर क्वालिटेटिव हमारे पास ये लिबर्टी होती है बिकॉज क्वालिटेटिव में आपके पास यू डू नॉट नो कि आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। क्वांटिटेटिव में तो हमने हाइपोथेसिस ड्रॉ कर लिया होता है, उसको हमने टेस्ट करना होता है। क्वालिटेटिव में वी डोंट हैव एनी हाइपोथेसिस व्हिच वी आर गोइंग टू टेस्ट। In qualitative, the results can vary from the individuals or from can be have a variety of results which you are not expecting. तो वहाँ पे हम theoretical framework पहले ज़रूर देते हैं लेकिन वो बाद में change हो सकता है। आपको बाद में लगता है कि नहीं आपके results से accordingly तो पीर बोर्डियो अप्लाई हो रहा है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड अप्लाई हो रहा है, तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट कहने का मतलब ये था कि थ्योरी आपको सपोर्ट करती है आपकी अपनी रिसर्च की डायरेक्शन बताने में। अब कार्ल मार्क्स ने आइडियाज दे दिए हैं, अगर आप कार्ल मार्क्स को अप्लाई कर रही हैं तो आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि आपने सिर्फ इन आइडियाज पे काम करना है। इफ यू आर अप्लाइंग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म डिबेट, यू नो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, जॉर्ज सिमल ने, कूले ने क्या क्या बातें की हैं, तो आप जब कूले को अप्लाई करोगे तो कूले बात करता है सेल्फ पे। सो आपकी रिसर्च की डायरेक्शन टोटली सेल्फ के ऊपर ही चलेगी, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। आपकी कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स भी वन वे और द अदर वे सेल्फ को रिलेट कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, formulating the theoretical framework, the purpose, it helps the researchers see clearly the variables of the study. I just explained it. It can provide him or her with a general framework for data analysis. अब डाटा एनालिसिस के लिए क्या हेल्प करेगा, जिस तरह से आपने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस कैसे इफेक्ट करती है क्लास डिफरेंसेस को, जिस तरह मार्क्स कहता है, तो उसमें आपको पता है कि इफेक्ट का मतलब ये है कि आप या तो कोरिलेशन अप्लाई करोगे या आप डिफरेंसेस देखोगे अपर एंड मिडिल क्लासेस में या लोअर क्लासेस में, या आप उसके ऊपर इम्पैक्ट देखोगे कि अगर अपर क्लास पे ज़्यादा इकॉनमी होती है तो उनकी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर ऑल्सो दिस फ्रेमवर्क इज ऑल्सो गिविंग यू डायरेक्शन कि आपका एनालिसिस कैसा होगा। अब सिम्बॉलिक इंटरेक्शन की जितनी डिबेट है उसमें आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है because symbolic interactionism talked about emotions, feelings, आपके symbolic जो qualitative perspectives होते हैं उसको डील कर रहा होता है। तो वहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि because you are applying George Herbert Mead's and George Herbert Mead's talked about these ideas which is not possible to analyze quantitatively, so therefore आपकी research design की direction भी set हो सकती है कि why not apply a qualitative perspective on that, or you can use mixed method if you feel कि आपके कुछ variables quantitatively measure हो रहे हैं, तो then you can relate those variable with another perspective, and those variables which you feel cannot measure under quantitative, there must be a qualitative perspective, so you can relate those variables under the qualitative theoretical perspectives. It is essential in preparing a research proposal using descriptive and experimental methods. So when you are clear about your conceptual framework and theoretical frameworks, then next you can decide कि आपकी research की जो nature है, जो proposal आप submit करवा रहे हैं वो क्या descriptive है, exploratory है, या आपको experimental study करने चाह रही हैं। Experimental studies में आप cause and effect देख रही होती हैं, you have two groups, control and रिसर्च ग्रुप, आप उसके ऊपर टेस्टिंग करके देख रही होती हैं कि आपके वेरिएबल्स के हाइपोथेसिस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो देयर आर थ्री मेजर पर्पसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग। एक तो आपकी रिसर्च वेरिएबल्स को डायरेक्शन मिल जाती है, सेकंड आपका डाटा एनालिसिस के लिए आपको हेल्प आउट हो जाती है, देन द थर्ड वन इज you able to decide that you have to do a qualitative or a quantitative research which is known as descriptive, exploratory or the experimental methods. Next, now how to construct a theoretical framework. Now at the first point,
till 1 to 3 you are very much clear about what is your topic, the main concern for inquiry in the research. Remember हमने डे 1 से आपके टॉपिक सिलेक्शन पे काम किया था. आप लोगों ने अपने अपने टॉपिक खुद ही सिलेक्ट किए थे कि मैंने इस पे काम करना है. ठीक है, तो दैट इज द मेन कंसर्न फॉर इंक्वायरी इन द रिसर्च. की वेरिएबल्स इन द रिसर्च जो आपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए थे इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज गिविंग यू अ वेरिएबल्स. आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, आप जेंडर डिफरेंसेस देख रहे हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट विद रिलेशन टू एजुकेशन देख रहे हैं. या बाकी लोगों के क्या टॉपिक्स थे, जरा मुझे रिमाइंडर दे दें आज का एंड नफीसा, ताकि मैं उससे रेलिवेंट आपको एग्जांपल्स देती जाऊं. मैम सोशल इकोनॉमिक Ma'am, implications of parents Kashmir issue on the environment. being. सॉरी नफीसा पहले बोल रही थी, नफीसा दोबारा बोलें. And socio-economic implications of Kashmir issue on the well-being of Gilgit. ठीक है, वेलबींग ऑफ गिलगित. ठीक है, और And parents' involvement in academic दूसरा? achievement. ओके, Parents' involvement. ठीक है. ओके, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स. Yes, ma'am. ओके, सो अब आपने देखा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, फादर और मदर पेरेंट्स के हवाले से भी हो सकते हैं. सो you will design your hypothesis on the multiple factors. It can be cause and effect, it can be it can be correlational, or it can be differences. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर. सो हम थर्ड पॉइंट तक यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है और यू आर डूइंग ऑन दैट टॉपिक, और वहाँ से भी आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मिलेंगी कि आप भी ऐसे कर सकते हो, ये भी वेरिएबल्स ऐड किए जा सकते हैं. List the constructs and variables that might be relevant for the study. If you remember the very first class debate जहाँ पे हम brainstorming कर रहे थे, looping कर रहे थे, now you have to construct those variables कि आपकी पूरी research के अंदर आपको कौन कौन से particular variables पे काम करना है. There can be 1,000 and thousands of variables which can work under one research topic. But being a researcher, we cannot do research on all the variables. So now you have to decide which kind of variables you have to select. So list down those variables, and then accordingly you have to select your theoretical frameworks. Consider how the variables are related to theory. ये जो दो debates है ना, 4th और 5th, this is all depend on you. You have a liberty इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि उस लिबर्टी के पीछे आपको लिटरेचर भी सपोर्ट करना है. अगर आप ये कहते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑन चिल्ड्रन परफॉर्मेंसेस, तो उसके पीछे रिसर्च को भी कोट करना है कि ये सिर्फ आप बात नहीं कर रही हैं, उसकी साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स टीचर्स या पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट चिल्ड्रन की परफॉर्मेंसेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है. तो वहाँ पे आपको अपने ही वेरिएबल्स, अपने ही हाइपोथेसिस को यू हैव टू सपोर्ट विद द प्रीवियस लिटरेचर व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ. जब आप लिटरेचर कर लेंगी तो हो सकता है कि आप पहले जो आपने की वेरिएबल सेकंड पॉइंट पे सिलेक्ट किए थे, उसमें से आपके पास 3 या 4 वेरिएबल्स थे. When you did your literature review, तो आपको लगा कि यार 3 और 4 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है. Only 2 variables can easily correlate with each other to do your research. Then after again you have to final construct your variables, or maybe at the first stage आपने सिर्फ 2 variables decide किए हुए थे. After doing literature review you have find out कि यार 2 से तो बात नहीं चलती है.
दो में से तो कुछ रिजल्ट्स भी नहीं निकलेगा, बाकी सब चीज़ ने इसी तरह से लिंक किया हुआ है। सो फोर्थ स्टेज पे जाके आफ्टर डूइंग लिटरेचर रिव्यू मे बी यू विल ऐड योर मॉडरेटिंग, इंटरवीनिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स या हो सकता है आप आईवी या डीवी के अंदर ही अपने और वेरिएबल्स लिंक कर लें। एंड आल्सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई गैप इन द लिटरेचर, इफ यू फाइंड आउट कि आपने जो 3 वेरिएबल सेलेक्ट किए थे लिटरेचर में वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं अब गैप तो निकल ही नहीं रहा बिकॉज ऑलरेडी सब रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके ऊपर। So maybe at the fourth stage you will construct a new variables, you will add a new variables into that literature, तो वो आपका automatically एक gap find out हो जाएगा। Are you getting my point? For instance, इसकी एक और एग्जांपल ये दे देती हूँ आप कह रहे हो कि मुंडा आपका जो टॉपिक था आप बात कर रही थी ऑर्फन चिल्ड्रन पे ना ऐसे ही था ना? आपका एग्जैक्टली टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सलीम के टॉपिक पे बात कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें बहुत सारे Yes, वेरिएबल्स ma'am, लिंक orphan करते हैं। children के साथ experiences of female orphan children. ओके, एक्सपीरियंसेस ऑफ फीमेल ऑर्फन चिल्ड्रन। अब उन एक्सपीरियंसेस में आपने देखा होगा कि आपके वेरिएबल्स क्या क्या निकले थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होंगी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या हो सकता है, आपका लिटरेचर क्या कह रहा है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जो आपके भी माइंड में थी, वो सारी की सारी लिटरेचर ने ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है, अब होगा क्या, गैप फाइंड आउट करने के लिए थिंक अबाउट एनी अदर वेरिएबल, लाइक आप ये कह सकते हो सिंगल और मैरिड फीमेल, उनकी सोशल वेलबींग डिफरेंटली इफेक्ट हो रही होगी व्हाइल लिविंग इन द ऑर्फन एज। फिर एज कैन बी अ वेरिएबल कि जो छोटी बच्चियां हैं उनकी वेलबींग डिफरेंटली इफेक्ट होगी बड़ी लड़कियों से। ठीक है, सो थिंक अबाउट दोज वेरिएबल जो ऑलरेडी किसी रिसर्च में स्टडी नहीं हुए, तो फोर्थ स्टेज पे यू विल एबल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेरिएबल्स व्हिच आल्सो रिफ्लेक्ट अ गैप इन द प्रीवियस लिटरेचर। सेम गोज टू सलीम, आपके केस में आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने आपको पहले कहा था कि एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के डिसीजन इस पे बहुत काम हो चुका है। आपको थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज वहाँ पे मिल जाएंगी हर वेरिएबल्स के हवाले से। वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन का रोल, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का रोल, सिंगलहुड मैरिड का रोल, कल्चर का रोल, each and everything has already done, but still you are interested to work, so you have to find out any new variable जो कि पहले से किसी रिसर्च में इस तरह से स्टडी ना हुआ हो जो आप करने जा रहे हैं। So you will find out a gap and you will construct a new variable. ठीक है जी, so in order to construct theoretical framework, these 5 points are very important to work on that. You have already done first 3, you now have to develop 4th and 5th steps. Okay, the next some points which are relevant to, if you have developed your conceptual framework, then you can revise the search and add the word theory to the keywords to find the theories and theorists most in line with the thinking of the researcher. This is very, very crucial stage. Even at the PhD level, we are stuck कि मेरे टॉपिक पे कौन सी theory apply होगी। We are confused. हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, इवन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। इवन PhD रिसर्च में when I was doing my research, तो वहाँ पे मुझे लगता था कि ये theory apply हो जाएगी, चलो let's apply this। जब उसको apply कर लेती थी तो जहाँ full stop लगाती थी वहाँ से एक नई story start हो जाती थी, और अगेन पिछला सारा theoretical framework लगता था कि ये unnecessary है, this is not important, या इससे अच्छा भी theoretical framework हो सकता है, इससे अच्छी भी theories exist करती हैं जो कि apply हो सकती हैं। Many times BS, MPhil and PhD students stuck with this theoretical framework, और बहुत दफ़ा स्टूडेंट आके पूछते हैं हमारे से, मैम बताएं कि theory कौन सी अप्लाई होगी, हमसे नहीं हो रही अप्लाई। ठीक है, सो
आप ये कर सकते हैं गूगल पे ही या जहाँ पे भी आप सर्च कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी इफ़ यू आर नॉट क्लियर कि कौन सी थ्योरी अप्लाई होने चाहिए, तो यू मे सर्च सम लिटरेचर ऑन द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। आपके टॉपिक पे कौन कौन सी सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आप ये कहोगे कि सोशलॉजिकल theoretical perspective on experiences of orphanage girls। ठीक है, जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको गूगल या जो भी आपका सर्च इंजन है दैट विल एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिसर्चेस जहाँ पे सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स अप्लाई हुए हुए थे या सोशलॉजिकल एनालिसिस किया गया था। व्हेन यू विल रीड दैट लिटरेचर यू विल गेट एन आइडिया कि आपकी टॉपिक पे ये सोशलॉजिकल थ्योरीज अप्लाई की जा सकती हैं। हम चूंकि सोशियोलॉजी के लोग हैं तो दैट्स वाई हम सोशलॉजिकल थ्योरीज को ही फोकस करेंगे। अगर आप बिजनेस के होते, मैनेजमेंट के होते, जेंडर के होते तो आप फिर फेमिनिस्ट थ्योरीज ऑन लिखते या मैनेजमेंट थ्योरीज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक का वर्ड मेंशन करते। ठीक है, सो you can also search your theoretical perspective under when you are doing your literature. Discuss the proposition of each theory and highlights its relevance to the research. If you are applying more than one theory, अब आप यहाँ पे आपने कहानी बिल्डअप करनी है। मैं आपसे पूछती हूँ अनका, आपको क्यों लगता है कि आपका टॉपिक कार्ल मार्क्स से रेलिवेंट है? आप उसको मुझे स्टोरी के फॉर्म में कैसे बयान करेंगी? कार्ल मार्क्स मैम क्लास डिफरेंस की बात करता है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो उसके फिनोमिना से काफ़ी लिंक करता है, क्योंकि उसमें एक रूलिंग एलीट होती है, उसके पास सारी हेजमनी होती है। बिकॉज मैं कोई भी ये नहीं सुनता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है या जो भी ग्लोबलाइजेशन की जो की फैक्टर्स हैं उनमें कोई लोअर क्लास की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो तो सिर्फ एक्सप्लॉयट हो रही है उसके अंदर। तो ये चीज़ ठीक, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव तो क्लियर है। अब इसको लिंक करें अपने टॉपिक के साथ। आपके टॉपिक में क्या ऐसी एक्सप्लॉयटेशन यू आर एक्सपेक्टिंग कि होगी जिन लोगों से आप रिसर्च करेंगी? मैम अभी इस चीज़ के बारे में तो मैंने कोई क्लियर वो नहीं रखा हुआ कि हो सकता है, हो भी सकता है और हो भी नहीं भी सकता। सो यू नेवर नो। ओके, बट आप आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना? यस मैम, अभी फिलहाल। ओके, तो सो क्वांटिटेटिव के लिए आपके पास वेरिएबल्स क्लियर होंगे कि आप क्या देखना चाह रहे हो। आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, अगर यू आर फोकसिंग ऑन द एक्सप्लॉयटेशन, you are focusing on the dependency, you are focusing on the policies, rules, regulations, क्या होती हैं इसमें उसकी? पॉलिसीज, ज़्यादातर पॉलिसी मेकिंग और इस तरह की चीज़ें न्यू। ओके, so जी ठीक है। सो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी पॉलिसीज कौन बनाता है, कैसे बनती हैं? फोकस पहले आप उसको करो, नैरो डाउन करो कि पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आपने क्या चीज देखनी है। जी मैम। ठीक है, कि पॉलिसीज बनाता कौन है, इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगेन पावर एलिट का कॉन्सेप्ट आ सकता है। जरूरी नहीं है मार्क्स आए, मार्क्स तो खुद कैपिटलिज्म के खिलाफ था ना। यस मैम। वो ये नहीं कह रहा था क्लास डिफरेंसेस अच्छे होते हैं या होते हैं, वो तो क्लास कॉन्शियसनेस इंक्रीज कर रहा था लोगों की कि कैपिटलिज्म इज द एक्सप्लॉयटेशन इन द वर्ल्ड, जिसको हमने ओवरकम करना है। सो मे बी यस यस। यू विल may find out के because you are talking about the policy levels decisions in import and export। ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिसीज बनाते कौन है? अगेन पावर एलीट, हेजिमनी, फूको का पावर ऑफ नॉलेज आ जाएगा। So you have to construct now this story that if your findings or your variable is talking about the policies decisions, so policies decisions are taken in this way. Even the Weber talks about the bureaucratical decisions. So maybe you can link with that Weber, that this is the system hierarchy which do not allow the lower class or the people who are beneficiaries, they may involve in the policy decisions. Always policies are taken by the bureaucratical elites। फिर elites यस मैम। exploit कैसे करते हैं? वहाँ पे वहाँ पे सी एट मिल की political elites भी आ सकते हैं। So many things are interlinked. Now you have to construct your own story linking with your variables and with the theory. So this is the seventh point, which is I'm talking about. Discuss the proposition of each theory and highlights its relevance to your research. यस मैम। Consider alternative theories that challenges the perspectives of the researcher। Alternate theories क्या हो सकती हैं?
मैं कह रही हूँ CIT मेल अप्लाई नहीं होता बिकॉज दिस इज their ideas or the postmodernism ideas are very much intermingled with each other, or maybe so you may relate with any other theories कि alternate CIT मिल ये कहता है but Karl Marx ये कहता है, so maybe we can relate both in order to overcome the challenges of your research. हो सकता है कि उसमें अब कार्ल मार्क्स totally opposite बात करता है ऑगस्ट कॉम्ट के, रॉबर्ट मार्टन के या बाकी अदर थेरिस्ट के, लेकिन मे बी सपोर्टेड. ठीक, हम ऑल्टरनेट उसको यूज कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिवली